Myself, Gurtej Singh. I hail from Jammu and Kashmir. I did my 10th and 12th from JK Public School, Jammu itself. And I did my BTech in Civil Engineering from NIT Srinagar back in 2018. I belong to a family of government employees. My father is a KS officer and my mother is principal in Government High Secondary School in Jammu itself. Back in 2018, I started preparing for engineering services. In 2020, I secured GATE 51 rank, All India rank 51 in GATE. And currently I am posted as operations officer in Srinagar Depot in IOC. And for this success that has been given to me by Almighty Vaheguru, I would like to congratulate my family, all the teachers that have been associated with me throughout my journey of 2 years. I would like to thank IAS Master for its continuous support and guidance, by which I think that I have been able to secure All India rank 6 in engineering services examination. Thank you. Congratulations Gurtej Singh on securing All India rank 6 in ESE 2020 from Civil Engineering branch. Thanks a lot, ma'am. Gurtej, it's a huge success. How was it received? Take us through the very special moment when you got to know about the result. So when I first came to know about the result, I was with my sister. We were shopping in Jammu itself, and I got a call from a friend that I have secured All India rank 6 in engineering services. First of all, it was merely unbelievable. I did not believe him. I questioned his thoughts and I questioned his tellings. Then I told my sister to check the result on UPSC website. Then I saw my result and I saw that I secured All India rank 6. Then it was approximately a 10 to 15 minutes journey back to home. I didn't tell anybody. I just came home. I saw my mother and father and I congratulated them that I have secured All India rank 6. And they were really very happy. My mother got all teary and all. And my father said that he knew that I had the potential in me, that I can clear this exam with such a good rank. And he was really very satisfied with all the results. And he congratulated me. He hugged me really tight. And I credit all my success and all my these laurels to my family, my sister, and all my dear friends who have been with me throughout this journey. It has been a really difficult journey with several ups and downs. And I am happy to say that I have an unbelievable type of friends. And I hope that ऐसे friends सबको मिले जैसे मुझे मिले अपनी life. How your friend circle motivated you to become an IAS officer? Back in 2018, we were 6 friends who thought of coming to Delhi for preparing for engineering services examination. And sir, वो 6 के 6 दोस्त मेरे अभी साथ सर्कल में हैं. 2 of them, मतलब मैं और मेरा friend, we cleared this examination. एक हमारे friend है, they cannot clear the examination. They were till the interview point. But sir, एक constant support, एक constant motivation रहता है जो friends देते हैं. मतलब कोई भी doubts मुझे हो, कोई भी doubts उनको हो. So we were a group of 6 people. We constantly मतलब मोटिवेटेड ईच अदर. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी मतलब ऐसा हो कि सब एक दूसरे की हेल्प करते थे. मतलब ऐसा कोई थॉट नहीं आया किसी के अंदर कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ही इज थिंकिंग लेस ऑफ मी और समथिंग. वी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड ईच अदर एंड एट द एंड वी आर सीइंग सक्सेस बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स ओनली. So I appreciate that I have such people in my friends list. What strategy you adopted to clear this exam? एट द वेरी बिगिनिंग एक थॉट मेरे अंदर था. मतलब मुझे फादर मेरे कहा करते थे कि जो भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई एक चीज है, सबसे आसान चीज है. बस बैठ के तुम्हें पढ़ना है, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं. बस पढ़ते रहो, सीखते रहो. क्योंकि नॉलेज एक अनएंडिंग एरिया है जहाँ पे तुम कभी लैक नहीं कर सकते. तो वो तुम हमेशा गेन करते हो. सर उसी थॉट के साथ मैंने एंटर किया, ये प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया. सर मेरे पास 6 मंथ्स थे. जून में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए. उससे पहले सर आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर इन कॉलेज. तो 4th ईयर में रियलाइजेशन हुई कि अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए. इट्स हाई टाइम नाउ. 4 साल मैंने बिल्कुल एंजॉय किए कॉलेज लाइफ को. अब कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए. तो सर वी डिसाइडेड टू कम टू दिल्ली. तो 6 मंथ से सर हमारे पास प्री के लिए प्रिपेयर करने के लिए 6 मंथ थोड़ा कम टाइम है आई मस्ट से. बिकॉज आपको फिर कोचिंग लेनी है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है. फिर वो सेल्फ स्टडी का टाइम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली दिन में 4-5 घंटे ही मिल पाता. लेकिन सर वो 4-5 घंटे भी वी 6 of us we devoted all our time, all our 4-5 hours to study itself. तो यही था सर, कंसिस्टेंट रहे, पढ़ते गए. मतलब एक थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स चीज मैंने ये की थी कि मैंने जो भी कोर्स मटेरियल होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की. जैसे RCC की देवदास मेनन हो गई,
स्टील की दुग्गल होगी, तो मतलब दुग्गल, मेनन, ये जियो टेक्नोलॉजी की बुक्स होगी, ये सारी मैंने पूरी पढ़ ली थी सॉर्ट ऑफ। लेकिन सर वो 6 मंथ जो टाइम पीरियड था जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया अपना, उसके लिए कम था। जब प्री दिया मैंने, वो तो क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू आउट हो गया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्पाइट स्कोरिंग 134 इन द इंटरव्यू। तो एक रियलाइजेशन हिट हुई मुझे कि कुछ मैंने गलत किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो था बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। टाइम बेशक कम था मेरे पास, लेकिन उसको भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाया। तो अक्टूबर 25 को जब रिजल्ट आया था सर फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरे, तो उसके बाद आई वाज लेफ्ट विद 2 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020। सो सर वो 2 मंथ्स जो थे वो काफी डार्क फेज था मेरे लिए, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल एरिया वो पूरा फिर से स्क्रैच से पढ़ना था। लेकिन सर फिर मैंने टेस्ट सीरीज आईएएस मास्टर में एनरोल किया। सारा टेस्ट सीरीज आईएएस मास्टर ने काफी हेल्प की है मेरी इस पेपर वन को क्रैक करने के लिए। पेपर वन काफी डिफिकल्ट होता है, काफी स्टूडेंट्स बेसिकली फॉल शॉर्ट कर जाते हैं मार्क्स में अपने पेपर वन में। तो पेपर वन में यही है कि पूरा होलिस्टिकली हर एक चीज तो आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि जो 40% ऑफ द क्वेश्चन होंगे वो सबके लिए नए होंगे। लेकिन ये है कि जितनी चीजें पढ़ रहे हो उनको ऐसे पढ़ो कि आप फिर से भूलो नहीं। सर यही एक स्ट्रेटजी थी कि पढ़ा, उसको पूरा कंसोलिडेट किया दिमाग में, फिर उसके बाद अप्लाई कर दिया एट द एंड पेपर। How did you maintain your focus on the goal? फोकस रखना, ये मतलब काफी अच्छा सवाल है। फोकस रखना किसी चीज में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे तो हमने सुना था कि दिल्ली का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली वी वर 6 पीपल फ्रॉम जम्मू इटसेल्फ। तो हमने फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक थोड़ा दिल्ली एक्सप्लोर किया, देखते हैं कि किस टाइप की डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे हो सकती हैं। हम मॉल्स वगैरह वगैरह गए स्टार्टिंग में, देखा हमने, ठीक है, उस कल्चर को देखा, थोड़ा अडेप्ट किया, वो हमें कुछ सूट नहीं किया। तो फिर रादर देन घूमना फिरना, वी स्टार्टेड स्टडिंग। हम पूरा बैठते थे सारे 6 के 6 आफ्टर कोचिंग, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, वी यूज्ड टू डिस्कस व्हाट द टॉपिक्स, बट ऑल टॉपिक्स वी कवर्ड इन द डे टुगेदर। एंड सर एट द एंड यही था कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, अगर टाइम मिले तो कोई अनऑर्थोडॉक्स बुक्स पढ़नी है इसके बारे में जो स्टैंडर्ड बुक्स है, और उसके बाद पूरा होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। जब मैं प्रिपरेशन में आया सर इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो ये मेरे मन में थॉट नहीं था कि मुझे पेपर क्लियर करना है, टॉप रैंक लगानी है, ऐसा ऐसा कुछ। मेरे को ये था कि सिविल इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स हैं वो मेरे सॉलिड होने चाहिए, कि कोई भी मुझे कुछ चीज पूछ रहा है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, मुझे पता होनी चाहिए। तो सर उस थॉट से मैंने प्रोसेस अपना शुरू किया। एक एक चीज धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप में बढ़ा आगे, तो वो कंसोलिडेट होके आज बेटर हो गया सर। When did you decide that I want to go for engineering services? Basically, my father used to push me that I should go for Indian Administrative Services, but मुझे जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग अपनी शुरू की तो आई गेन्ड अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट विद सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग की सबसे एस जॉब है जो इंडिया में, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो बाय द एंड ऑफ, नॉट बाय द एंड ऑफ, बाय 7th सेमेस्टर मैंने सोच लिया था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने देना था कॉलेज में रह के, बट ड्यू टू माई एज लिमिट आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम, तो वो फर्स्ट एग्जाम में दे नहीं पाया। तो उसके बाद सर मैंने डिसाइड कर लिया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है, तो गेट साइड बाय साइड चलता रहेगा। बेसिकली लैडर है सर ये, मतलब कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ही मस्ट, अगर वो इंजीनियरिंग में एक्सेल करना चाहता है तो ही मस्ट गो फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसके बाद अगर टाइम मिलता है ही मस्ट गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो 7th सेम में मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करनी है। मैंने कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं मंगाया उनका। मैंने कहा कि ये अपना एक थॉट प्रोसेस पहले सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे, फिर और कुछ नहीं करेंगे। तो लास्ट सेम सर मैंने बिल्कुल कॉलेज में, बीइंग इन श्रीनगर, आई एंजॉयड एवरी पार्ट ऑफ माय 8th सेमेस्टर, एंड एट द एंड आफ्टर 8th सेमेस्टर आई एनरोल्ड इन दिल्ली, और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। Why did you choose civil engineering? इंजीनियरिंग सर्विसेज जब सर सोचा था मैंने कैरियर ऑप्शन के लिए, तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं इसको जल्दी ही क्लियर कर लेता हूँ तो मेरे पास काफी एज होगी पूरा एक्सप्लोर करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग डोमेन्स, जो कि बहुत वास्ट है। जैसे सर सिविल इंजीनियरिंग इंडीड नो डाउट कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग है पूरे इंडिया के लिए, डिस्पाइट वी स्टिल लैक इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, बट स्टिल सर, जैसे रिसेंटली न्यूज आपने सुनी होगी दैट वी हैव क्रिएटेड अ ब्रिज that has been linking Kashmir to Kanyakumari। तो ये काफी मेंटल गैप और काफी फिजिकल गैप जो था, फिजिकल गैप इज फुलफिल्ड बाय सिविल इंजीनियरिंग ओनली, दैट हैज बीन एफिलिएटेड विद क्लोजिंग द मेंटल गैप ऑफ पीपल आल्सो। तो सिविल इंजीनियरिंग एक काफी, मतलब ऐसा डोमेन है जो पूरे इंडिया में मतलब यूनाइट करने के लिए काफी हेल्प कर सकता What was your daily schedule? है। जो मेरा शेड्यूल था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर क्लियर कट ये था कि पहले
क्लासेस होती थी हमारी 8-9 आवर्स की, फिर उसके बाद हमें 5-6 आवर्स मिलते थे पढ़ने के लिए। तो वो 5-6 आवर्स जो सेल्फ स्टडी के थे वो बेशक कम थे, लेकिन सर स्टिल वी यूज्ड टू स्टडी फॉर 5-6 आवर्स। आई क्लियर्ड प्री, लास्ट ईयर का प्री कट ऑफ था 188, आई स्कोर्ड 190 मार्क्स ओनली। बट ये चीज आपको पता नहीं होती है कि दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू क्लियर द इंटरव्यू और नॉट। तो मैंने प्री तो क्लियर कर लिया, उसके बाद मेंस आया सर। तो मेंस के जब मैं टेस्ट देता था, आई यूज्ड टू टॉप सम ऑफ द टेस्ट इन कोचिंग। एंड देन जब मेंस का पेपर हुआ, फिर रिजल्ट लिस्ट आया, फिर मैंने देखा कि मेंस भी क्लियर हो गया है। तो लेकिन वही मार्क्स का आइडिया नहीं था। अब मेरे को गैम्बल था कि इंटरव्यू में कितने हद तक पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो मैंने अपना सर फुल पोटेंशियल दे दिया इंटरव्यू में, जितना कुछ हो सकता था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दिया। एट द एंड बोर्ड था स्मिता नागराज पैनल का, तो कहते हैं कि मतलब काफी डिफिकल्ट टाइप ऑफ बोर्ड होता है, लेकिन ऐसा सर मुझे कुछ नहीं लगा वहां पे। इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल चला, बिल्कुल प्रॉपर इंटरव्यू चला। मेरे से स्टेट के बारे में पूछा स्टार्टिंग में, उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें पूछी वगैरह वगैरह। तो इंटरव्यू के बाद में मतलब एक पैनल मेंबर थे, उन्होंने काफी डिफिकल्ट सवाल पूछे और वो किसी सवाल के साथ एग्री नहीं कर रहे थे। तो जब मैं बाहर आया, मैंने कॉल किया डैड को, मैंने कहा एक पैनल मेंबर थे तो शायद उनको इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं लगा, तो मार्क्स कम आ सकते हैं, तो शायद नहीं होगा। चलो एट द एंड जब रिजल्ट लिस्ट आई, नहीं हुआ मेरा वो, तो चलो मेरे को लग ही रहा था क्योंकि प्री में स्कोर कम है, नहीं होगा, कोई बात नहीं, डिसहार्टेड नहीं होना ज्यादा। लेकिन जब मार्क्स लिस्ट आई, फिर मैंने देखा आई स्कोर्ड 134 इन इंटरव्यू। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा स्कोर है, तो इंटरव्यू तो अपना सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड ही है। लैक हम करते हैं मेंस और प्री में। मेंस में आई स्कोर्ड 190, मेंस में आई स्कोर्ड 355 एंड प्री में 190। तो कंसोलिडेट स्कोर मेरा हुआ था 680 और कट ऑफ था 700। तो सर ये जब रिजल्ट आया 25 अक्टूबर को, तो मैंने देखा कि काफी चीजें, मतलब पेपर 1 ऑफ प्री में मेरे सिर्फ 60 नंबर थे। 60 नंबर से तो मुझे पता था ये एग्जाम क्लियर तो होने वाला नहीं है, ऑलरेडी टॉप तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फिर सर आई स्टार्टेड, मेरे 26 अक्टूबर को बैठ के, 27 को आई गेस दिवाली थी, उससे एक दिन पहले ही बैठ के मैंने सारा अपना प्लान डिवाइस कर लिया कि नॉन टेक को कितने दिन देने, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। वो 2 महीने जो थे सर, वो काफी डिफाइनिंग 2 महीने थे मेरे लिए, अक्टूबर 26 टू दिसंबर 26। तो उन 2 महीने में मैं पूरा जुट गया, मतलब पूरा अपना मैंने दे दिया। टेस्ट सीरीज में मैं देता था, टेक्निकल में से 300 में से 250 मार्क्स भी लाए मैंने आधे टेस्ट में, तो कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है। तो सर जब प्री देने की बारी आई, एक मैं चीज ये मतलब कहूंगा कि सबसे ही मेरे जो भी एस्पिरेंट्स हैं अभी आगे देंगे, तो वो ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज में आप जैसा करते हो जरूरी नहीं है वैसा आपके साथ पेपर में हो। पेपर में बड़े ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, आपको सब हर एक चीज कंसिडर करके चलनी चाहिए। जैसे मेरे प्री के पेपर 1 में अटेंडेंस शीट आई, और उस अटेंडेंस शीट में मैंने ब्लंडर कर दिया कि मैंने कुछ आंसर बुकलेट नंबर होता है उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर डाल दिया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन प्री 2020 मैंने सोचा कि एक और साल मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि ये मेरा पेपर 1 इवेल्युएट ही नहीं होगा। एंड एक और चीज, जो हमारे यहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे उनको भी ये आइडिया नहीं था इससे क्या होने वाला है, एंड नोबडी वाज देयर टू हेल्प। तो वो ये था कि इन प्री 2020 में उठ के अपनी सीट से बाहर सर से चौक मांग रहा हूँ कि मुझे दे दो, मेरे को इसको रब करना है, वरना मेरा एक और अटेम्प्ट चला जाएगा यहाँ पे और नहीं होगा इवेल्युएट पेपर। सर वो पूरा पेपर 1 पेपर 2 वो मेंटल सेटअप पूरा बिगड़ गया मेरा इस प्री 2020 में, क्योंकि वहां पे कोई बताने वाला नहीं था कि इट इज नॉट अ बिग डील। फिर मैं घर आया, एक दिन पूरा टेंशन में रहा, अगले दिन मैंने यूपीएससी फोन किया। यूपीएससी में जो सर थे उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आपने हमारा काम बढ़ा दिया, दैट्स इट, आपने कुछ और नहीं किया, कोई ब्लंडर नहीं किया, योर शीट विल बी इवेल्युएटेड, आप टेंशन मत लो, रिजल्ट आपका आएगा। तो सर वहां से थोड़ा ठीक मिला, लेकिन जो मेंटल जो मैंने वो कर दिया था चेंज वहां पे पेपर 1 में और पेपर 2 में, तो वो चीज रिकवर नहीं हो सकती थी। तो वही थोड़ा हुआ, प्री में लगा था कि फुल पोटेंशियल में दे सकता था, वो मैं दे नहीं पाया। लेकिन इंडीड डिस्पाइट ऑफ दैट आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर मेंस। काफी प्रोलॉन्ग हो गया ड्यू टू दिस पैंडेमिक, काफी प्रोलॉन्ग हो गया। पहले पहली डेट आई जून 28, फिर सेकंड डेट आई अगस्त में, फिर थर्ड डेट आई अक्टूबर में। तो काफी डिफिकल्ट था अपने आप को कैरी करना, मतलब कि पेपर कब होगा, कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर वास्ट बहुत है सिलेबस। और इस बार जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने अनऑर्थोडॉक्स बुक जो थी, मतलब स्टैंडर्ड बुक जो थी, सब पूरी कंप्लीट कर दी थी, सॉर्ट ऑफ स्टील की, ये आरसीसी की, सॉरी सारी कंप्लीट कर दी। तो वही था कि पूरा मैं देखूं कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो डिवाइस किया सारी चीजें। फिर मेंस दे के एट द एंड मेरा फिर आईओसीएल में हो गया था, ये सिलेक्शन हो गया आईओसीएल में। तो फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग में चला गया आईआईपीएम गुड़गांव। तो वहां पे भी सर जो मेरे एचआर के टीम मेंबर्स थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे। लीव देना काफी डिफिकल्ट होता है ट्रेनिंग टाइम में, उन्होंने वो भी हेल्प की ताकि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँ। एट द एंड सब ने पूरा एक होता ना सर, किसी चीज को मतलब अगर तुम करते हो शिद्दत से, तो सारा मतलब यूनिवर्स कोलाइड हो जाता है पूरा।
उसको हेल्प करने के लिए। तो काइंड ऑफ वही हुआ, सबने मेरे जितने भी मेरे टीम मेंबर्स थे, जितने भी मेरे आईओसीएल में सर थे, सबने मेरी सॉर्ट ऑफ हेल्प की कि मैं अपने गोल की तरफ फोकस रहूं और डिविएट ना करूं इस बात से। How did you manage the exam pressure? जो जब मैं स्टार्ट में करता था, मेरा जब पहला अटेम्प्ट देने गया था, तो मेरा एक ये वो था कि सबसे पहले असर्शन रीजन करूंगा मैं ट्राई। लेकिन जैसे ही मैंने 2019 का पेपर देखा, मैंने देखा सिर्फ 6 असर्शन रीजन के सवाल आए हैं उसमें। तो वहां पे ही मैंने सोचा ये क्या हो गया है? मैं जो सोच के आया था, जो स्ट्रैटेजी मैंने डिवाइस की थी, वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं होने वाली। तो वहां पे ही मैंने प्रेशर को हैंडल करना बेसिकली सीख लिया था कि धीरे धीरे चलते हैं, क्या क्या होगा क्या क्या। स्टार्टिंग में मैंने जैसे सॉर्म स्ट्रक्चर के क्वेश्चन थे, वो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो वही स्टार्टिंग में यही किया कि सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए तेज तेज। मतलब स्टार्टिंग से ही एक पेस ऐसी एक मेंटेन की कि एट द एंड ऑफ द टाइम मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए वापस आने का, पेपर देखने का, ताकि मैं फिर से सारे सवाल पढ़ सकूं। और आधी चीज ये भी होती है कि कोई बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स से टॉपिक्स जैसे होते हैं वो आ जाते हैं पेपर में। जैसे इस साल भी पोर्ट हार्बर के काफी सवाल आ गए थे इन ईएससी 2020 प्री। तो जनरली वो चीजें कवर नहीं करते। अगर वो चीजें कवर कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो चीजें कवर नहीं की है किसी ने, तो व्हाट वी पीपल डू, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, गैम्बल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो चीज मैंने नहीं की। मैंने देखा पोर्ट हार्बर है, मैंने क्वेश्चन जैसे ही पहली लाइन रीड की, मैंने कहा ये नहीं आता, इसको छोड़ते हैं, गैम्बल नहीं करना। तो इस चीज ने क्या हेल्प की मेरी, मैंने जब पेपर रिवाइज किया तो 3-4 जो गलतियां थी मैंने की हुई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक, वो मुझे मिल गई और वो सब सॉर्ट ऑफ मैंने कर ली। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर है। और ये 3 घंटे में स्टार्टिंग में सोच के चलना चाहिए कि आपको ऐसे पेपर कंप्लीट करना है कि आपको लास्ट में 20-30 मिनट्स मिल जाए कि आप पेपर एक बार देख सको। वो टाइम मैनेजमेंट ही सिखाएगा। How did IAS Master help in your exam preparation? आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे ही मैंने देखा कि मेरा जो जीएस पार्ट है पेपर 1 वो काफी वीक है, तो आई मतलब जैसे स्ट्रेट अवे आई एनरोल्ड फॉर आईएएस मास्टर टेस्ट सीरीज। तो आईएएस मास्टर की जो टेस्ट सीरीज थी, इट इज वेरी होलिस्टिक। तो सारे टॉपिक्स बेसिकली बहुत टॉपिक्स हैं इस बार जीएस में जो सारे कवर नहीं हो सकते, लेकिन आईएएस मास्टर ने काफी हेल्प की उनको शॉर्ट में बताने की। कोई टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक जो हम रीड नहीं कर सकते, उसको आईएएस मास्टर ने क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया, ताकि वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे वो पूरा कवर कर सकें। तो एट द स्टार्ट मेरी प्रिपरेशन ही पूरा पुश कर दी सॉर्ट ऑफ आईएएस मास्टर ने कि मैं अपने जीएस पेपर 1 में जो मेरा एक ड्रॉबैक था वो अच्छी तरह कर सकूं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई अटेम्प्टेड 95 क्वेश्चंस इन पेपर 1 दिस ईयर। एंड उसके बाद सर कंसोलिडेट करने के लिए आईएएस मास्टर का जो मॉक इंटरव्यू हुआ, वो बिल्कुल ही टू द पॉइंट, ऐसे लग रहा था पूरी अच्छा इन्वायरमेंट था पूरा, जैसे फाइनल इंटरव्यू में होता है। स्टार्टिंग में कॉर्डियल करते हैं, पहले धीरे धीरे थोड़ा ईज में रखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे डिफिकल्ट क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं टेक्निकल से। तो बिल्कुल वैसा था। मतलब सॉर्ट ऑफ जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में। तो काफी इसका एक हेड्स अप मुझे सॉर्ट ऑफ मिल गया था आईएएस मास्टर का मॉक इंटरव्यू एनरोल में। तो आईएएस मास्टर ने सॉर्ट ऑफ काफी हेल्प। How many subjects you used to study in a day? इसका कोई भी प्लान नहीं था कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। जैसे मैं टॉपिक्स पकड़ता था, मतलब कि एक टॉपिक कोई मेरा वीक है, जैसे स्टील में सपोज मेरा प्राइम फोर्स का टॉपिक वीक है, तो मैंने वो टॉपिक पूरा उठा लिया और पूरा पढ़ लिया। इस बार सर कोई भी ये नहीं कहेगा कि टाइम हमारे पास कम था, क्योंकि टाइम तो बहुत मिला सबको। इस बार अप्रोक्सीमेटली 8-9 मंथ्स तो मिल ही गए हैं प्री के बाद मेंस के लिए पढ़ने के। तो सब्जेक्ट्स को पढ़ना वाज नेवर अ बिग डील। सब्जेक्ट्स को होलिस्टिकली पढ़ना, दैट वाज अ बिग डील। एक एक छोटी छोटी चीज जो हम छोड़ जाते हैं, तो वो पकड़नी, वो मतलब हर एक चीजें तो इंसान पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें उसको पकड़ के कंसोलिडेट करना ब्रेन में, ताकि वो पेपर के टाइम यूज आ सके। तो सर ये भी मेरा एक तरीका रहता था। आईएएस मास्टर की 2018 की टेस्ट सीरीज थी मेरे पास, उसमें मैं क्या करता था, जो काफी नए नए क्वेश्चन थे, मैं देखता था कि 3 घंटे में मैं बिल्कुल एक ऐसा नया सा सवाल उठाऊं कि मैं देखूं कि मेरा दिमाग इसको हैंडल कर पा रहा है या नहीं, मतलब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं या नहीं, ताकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि लास्ट में कोई पेपर में कोई ऐसा डिफिकल्ट सा सवाल आ जाए जो पहली बार मतलब बिल्कुल कभी भी देखा ना हो, उसमें काफी हेल्प हो जाए। तो ये चीज ने काफी हेल्प। What did you do to rejuvenate your mind and avoided information overload? सर टू रिजुविनेट माई माइंड, आई थिंक नेचर इज द बेस्ट इंस्पिरेशन आई कैन हैव। तो सबसे ज्यादा मैं माइंडफुल वॉक्स लेता था। मतलब कभी भी होता है सर, ओवरलोडिंग हो जाती है सॉर्ट ऑफ पढ़ते पढ़ते। बेसिकली मैं नाइट आउट, तो रात को ही पढ़ता था मैं। अप्रोक्सीमेटली 11 बजे मेरा सॉर्ट ऑफ दिन शुरू होता था रात के, तो फिर 7 बजे तक चलता था पूरा, ये साइकिल था। तो मैं सुबह मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट साइकिल था मेरा। तो जैसे उठ के थोड़ा, कभी बाइक थी मेरे पास, कार थी, तो थोड़ा ड्राइव पे चले गए, थोड़ा ईज में आ गए।
जम्मू एंड कश्मीर है, अच्छा है, सीनिक ब्यूटी भी काफी है यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बंदा चला जाता है लॉन्ग ड्राइव पे, तो वो हो जाता था, हैंडल कर लेता था। उसके बाद कोई भी प्रेशर हो सॉर्ट ऑफ, तो वॉक्स ने, कभी कभी प्रेयर्स ने, पाठ कर लेते थे, ठीक है, पापा के साथ बैठ गए, डिस्कस कर लिया उनका दिन कैसा रहा। बेसिकली डिविएट करना होता है अपने माइंड, कभी हम बहुत ही वो खुब जाते हैं सॉर्ट ऑफ एक चीज के अंदर, वो नहीं करना है, बाहर निकलना है, थोड़ा हर एक चीज को हॉलिस्टिकली देखना है, बड़े पिक्चर में देखना Gurtej, what is your message for future aspirants? है। अभी जैसे फॉर्म निकल गए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो वो भरने हैं, तो प्रेशर होगा काफी कि जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे उनके अंदर, क्योंकि काफी प्रोलॉन्ग जर्नी थी ये सॉर्ट ऑफ इस इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि वैकेंसीज को दिमाग में बिल्कुल ना रखें, यू जस्ट हैव टू सिक्योर वन सीट, डिस्पाइट जो भी जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है, मैं नहीं कहूंगा 30 है 40 है, जो भी जनरल में जितनी सीट्स हैं, तुम्हें एक चाहिए और उस एक के लिए लड़ना, ठीक है, उस एक के लिए कैसे लड़ना है वो तुम्हें खुद डिवाइस करना है। मेरी स्ट्रैटेजी वोंट बी एप्लीकेबल टू योर स्ट्रैटेजी, बट एक चीज देखनी है कि किस चीज में तुम वीक हो, उस चीज को, जिस चीज में वीक होते हैं ना उसको बार बार करो, बार बार करो, मतलब ताकि उसमें इतने सॉलिड हो जाओ, इतने पंचेस ले लो कि आगे से कुछ ना हो पाए उसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना है उसमें, कुछ ना हो। शॉर्ट नोट्स अपने जो अपने बनाए हुए हैं वो रीड करें, टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा एनरोल करें, जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो भी हमारी कोचिंग है आईएएस मास्टर, ये काफी टाइम डिवोट करते हैं टेस्ट सीरीज को एनविसाज करने के लिए, तो पूरे टेस्ट सीरीज में बिल्कुल अच्छी तरह पूरा फोकस हो जाओ, जितने भी डाउट्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप गलतियां करते हो, उसको लिख लो। मेरे पास एक अभी तक नोटबुक पड़ी हुई है जिसमें मैं लिखता था टेस्ट सीरीज ब्लंडर्स, कि मतलब मैंने कोई चीज ना पढ़ी, कोई चीज कम पढ़ी, वो मैं सब जॉट कर लेता था कि ये गलतियां मेरे से हो गई, ये गलतियां आगे नहीं होनी चाहिए। एंड उस नोटबुक ने, वो छोटी नोटबुक ने काफी हेल्प की मेरी एट द एंड ऑफ द प्रीलिम्स ऑफ 2020। तो ये मैं कहूंगा कि जो भी शॉर्ट नोट्स है, जितना भी आपने सोचा हुआ है उसको पूरा प्लान कर लो और स्टिक टू योर स्टडी, भी बस पढ़ो और ज्यादा सोचो मत कि वैकेंसीज कम है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छी तरह पढ़ो, सब बेस्ट होगा। Tell us about your college life. NIT Srinagar is one of the most beautiful college in India, I must say. जैसे जो भी NIT की लाइफ थी मेरी, सॉर्ट ऑफ पहले साल में गया, वहां पे फ्लड्स आ गए, श्रीनगर फ्लड्स, तो कॉलेज बंद हो गया। फिर सेकेंड ईयर में गया तो कोई राइट्स हो गए, फिर कॉलेज बंद हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ में मैं सिर्फ 2 साल कॉलेज लाइफ में रहा। तो उन 2 साल में मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट 2 ईयर्स ऑफ माई लाइफ थे वो। मतलब कॉलेज में मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का कोई माइंड में थॉट नहीं था, मतलब कुछ पढ़ना वगैरह वो सब कुछ नहीं था। थोड़ा एक दिन पहले पढ़ते थे, पेपर देने जाते थे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ऐसी लाइफ मैंने कॉलेज में जी है। ऐसा नहीं कि फोकस्ड है, क्लियर करना है, गेट देना अच्छी तरह, कुछ करना है, वैसा मैंने पूरा एंजॉय किया। ठीक है, लास्ट सेम में मेरे पास बाइक होती थी, वो निकल जाते थे हम, यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, हर एक देखी है मैंने। तो लेकिन उसके बाद ना जब सारी चीजें इंसान कर लेता है, फिर कहता है कि अब हाई टाइम हो गया, अब सब कुछ तो देख लिया है, क्या करना है अब। तो अब कहता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अथॉरिटी का शौक आना चाहिए। तो फिर जैसे मैं NIT श्रीनगर में, एक ये बात भी है, बिकॉज ऑफ द वेदर वहां पे पढ़ने का बहुत मजा आता है, और पढ़ने का और सोने का, तो 2 ही चीजें हैं इंसान को करनी चाहिए फिलहाल, जो ये कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं चीजों के लिए, बस पढ़ो और सो, और क्या चाहिए होता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो जो एटमॉस्फेयर था वो NIT श्रीनगर में काफी अच्छा मिला। NIT श्रीनगर के काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मेरे सीनियर्स ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैक इन 2017 मेरे सीनियर्स हैं। लास्ट ईयर भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया इंजीनियरिंग सर्विसेज। मेरे जो NIT श्रीनगर के काफी वो है सीनियर्स हैं, जिन्होंने अभी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्वालिफाई किया, रैंक 1 2 3 4 सारे वही हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके, सबसे लेके, क्योंकि वो सब हेल्प करता है। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हो, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इम्प्रिंट कर जाती हैं। कोई एक पॉइंट आप उससे उठा लो, तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करो, तो वो काफी हेल्प कर जाता है। तो वो चीजें मैंने की अपने सीनियर से, और अब ये रिजल्ट एज सच मैं नॉलेज कर रहा हूँ। Tell us about your schooling. स्कूल लाइफ बैक इन, अगर मैं बहुत ही अर्ली एज में चला जाऊँ, तो मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली बॉर्डर एरिया पुंछ। तो फर्स्ट से लेके 7th तक आई वाज ग्रूम्ड इन पुंछ ओनली। क्राइस्ट स्कूल पुंछ से मेरी स्कूलिंग हुई है। उनके प्रिंसिपल अदर मैथ्यू नेलडर, उन्होंने काफी मतलब इंस्पायर किया था मुझे अपनी टीचिंग के साथ। उन्होंने कहा था मतलब कि कोई भी एक गोल सेट कर लो, क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटे, किसी को पता नहीं होता हमने करना है क्या। तो उन्होंने कहा था कोई भी अपने डोमेन्स जो है उनको एक्सप्लोर करो, कोई भी एक गोल सेट कर लो एंड बी फोकस्ड टुवर्ड्स। तो उसके बाद 8th में जैसे फादर की ट्रांसफर हो गई जम्मू में, देन
हमारी पूरी फैमिली जम्मू आ गई। तो 8 से लेके 12 तक आई वाज एफिलिएटेड विद जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी। तो स्कूल में जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम जो थे, हमारे कोऑर्डिनेटर संध्या मैम जो थे, उन्होंने काफी हेल्प की, काफी मतलब ग्रूमिंग में यही होता है, एक्सपोजर जो होता है ना सॉर्ट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी स्पीचेस, जितने भी डिबेट्स आप देते हो, ये सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाते हैं, ये रहते हैं आपके साथ। ताकि ये मतलब मैं जितने भी डिबेट्स हैं उनके छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे याद रहते थे अभी भी स्कूल के, और वो पॉइंट्स मैं इंटरव्यू में बोल देता था। यूपीएससी के इंटरव्यू में वो पुराने पॉइंट जो कहीं मेरे दिमाग में छिप गए, तो वो काफी हेल्प कर जाते हैं बोलने में। तो यही है पर्सनल ग्रूमिंग। जैसे मतलब मेरे टीचर होते थे विनीत सर, उन्होंने काफी हेल्प किया मुझे, जैसे मैथ्स के सॉलिड्स करने में बेसिक्स। तो यही है, टीचर्स जो है आपके, टीचर्स बेसिकली डिफाइन। सबसे डिफिकल्ट जॉब मैं कहूंगा जो कोई भी प्रोफेशन की है वो टीचिंग की है। बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है? तो उसको ग्रूम करना, उसको बनाना, उनको एनविजाज करना, इस पॉइंट उसको शेप देना पूरा प्रॉपर, कि वो जाके कुछ करे, कुछ सही करे, मतलब जिसके लिए भी, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, सबके लिए कुछ सही करे, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मेरा जितना भी क्रेडिट्स है वो सारे मेरे टीचर्स। Gurtej, what are your hobbies? My hobbies include watching documentaries, playing e-sports, काउंटर स्ट्राइक का मैं वेरी कीन प्लेयर हूँ, तो कॉलेज की टीम को भी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो मेरे 4 साल कॉलेज में निकले हैं NIT श्रीनगर में, तो उससे मैंने ये हॉबी डिवाइस की है कि मैं ट्रैकिंग का बहुत शौकीन हूँ। मतलब ट्रैक्स वगैरह, यही मतलब बाइक राइडिंग, ट्रैकिंग, इसका काफी एक वो रखता हूँ, कीन एंथुजियाज्म। Tell us about your family. फैमिली हैज, माय फादर इज एन केएस ऑफिसर, तो वो तो मतलब कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन ही रहे हैं मेरे लिए स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने ही पुश किया है मुझे कि यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, डिस्पाइट वो देखते थे कि ये करता नहीं है कुछ कॉलेज में, मतलब मैं बिल्कुल एंजॉय करता था, कोई सीरियसनेस थी नहीं मेरी उसमें। तो उन्होंने काफी मुझे पुश किया है कि इट्स टाइम टू टेक चार्ज नाउ, यू हैव टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम ये भी आता है कि बंदा खुदगर्जी छोड़ के दूसरों के लिए ज्यादा सोचना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इट्स टाइम नाउ, यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी। तो पापा ने कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया। माय मदर इज प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उनका भी काफी मोटिवेशन रहा है मुझे बड़ी ग्रूमिंग। कोई भी मतलब जितने भी मेरे टेस्ट होते थे, मैं स्कोर अपने जाके मम्मा को सुनाता था कि मम्मा ऐसा स्कोर आ गया है, तो वगैरह वगैरह। कम स्कोर होता था, कभी ये नहीं कहते थे कि यार थोड़ा पढ़ लो जाके, क्योंकि उनको पता था कि ये कर रहा है प्रिपेयर, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहेंगी, लेकिन ये कि सॉर्ट ऑफ पूरा पुशिंग करेक्टर था उनका, पूरा मोटिवेट करता। और मेरी सिस्टर भी हैं, वो भी आईएएस एस्पिरेंट है, तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया। मेरे जीएस जो वीक पार्ट थे, जैसे आजकल जीएस में इकोनॉमिक्स काफी स्टार्ट हो गया ट्रेंड में आना, इकोनॉमिक्स हो गया ये सब, और वो कंप्यूटर साइंस के भी ग्रेजुएट हैं, तो आईसीटी पार्ट हो गया, तो ये सारे पार्ट में उन्होंने हेल्प कर दी मेरे को समझाने में। तो होलिस्टिकली पूरी फैमिली ने पूरा हेल्प। Tell us about your strategy for ESC Paper 1. ईएससी पेपर वन में बेसिकली जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं कहूंगा मेन फोकस रखिए, मतलब इनको तो बहुत ही सॉलिड करके जाना है। जैसे मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट और मटेरियल्स हैं, क्योंकि ये एक तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और इनकी जो मार्क्स की टेंडेंसी है थोड़ी ज्यादा रहती है अदर सब्जेक्ट्स के कंपेरेटिवली। तो इस पे मैं कहूंगा मेन फोकस रखें, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पैरेलली साथ साथ चलाएं। क्या होता है, हम टेक्निकल भी ना, स्ट्रक्चर का आप कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसके बाद आप थक जाओगे, तो उसके बाद क्या करो, नॉन टेक्निकल की छोटी सी बुक उठा लो, उसको पढ़ो, 3-4 पेजेस पढ़ो, वो धीरे धीरे इम्प्रिंट होते जाएंगे आपके पे। सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो जाहिर सी बात है आपको नहीं आते होंगे, जितने भी 100 क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको नहीं आते होंगे जो ईएससी प्री में होते हैं, लेकिन जो 50-60 क्वेश्चंस आप सॉलिड होते हैं वो आप करके जाए, वो आप प्रैक्टिस से, बुक्स रीडिंग से, थोड़ा कभी टाइम मिले न्यूज़पेपर के 1-2 आर्टिकल देख लिए, ज्यादा न्यूज़पेपर तो मैं नहीं कहूंगा, रेकमेंड नहीं करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ के जाओ पूरा होलिस्टिकली। और टेस्ट सीरीज तो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन से टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर पेपर वन। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक्स अ लॉट मैम।